women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana enhance their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Viksit Bharat. Our vision for Viksit Bharat is that of prosperous Bharat,
in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East, Aga Grameen. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Grameen continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance.
Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed UWIN platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds
for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker, sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation. The outlay for the next year is being increased by 11.1%, 11,111 crore rupees
our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. For harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting growth. A new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places
presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking up India. FDI is first developed India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of 27.5 are 23.24 lakh crore. The revised estimate of total expenditure 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80
and 46 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. It's reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72.
The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, such outstanding direct 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial 10-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind.
आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वो क्या रहेंगी इस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट हो रहा तैयार। देश के लोगों को है उम्मीदें अपार। किस सेक्टर को क्या मिलेगा खास? गांव, गरीब, युवा, कारोबारी, किस किस की पूरी होगी आस? अंतरिम बजट पर देश की उम्मीदों पर आधारित हमारा खास शो। ये साल अंतरिम बजट के लिहाज से, मैक्रो इकोनॉमी के लिहाज से कैसा नजर आ रहा है? एक्चुअली 2021 से हम लोग 7% के दर से ज्यादा चल रहे हैं। अगले वर्ष में मुझे लग रहा है कि हम लोग ये 7.3 से भी आगे चले जाएंगे। बजट 2024 विकसित भारत का संकल्प। देखिए हर शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
उल्लाल की रानी हूँ मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा के हित में होगा। पुर्तगाली मनमाना कर वसूलना चाहते थे और रानी अबक्का उनकी मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देना चाहती थी। उल्लाल को बर्बाद कर उस एरोगेंट क्वीन का घमंड है। अब इन्हें घसीट कर वायसरॉय के पास ले जाऊंगा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मजबूत होती अर्थव्यवस्था, तेज गति से हो रहा विकास, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर भारत। विकसित भारत के सपने को बल देगा यह बजट। बजट से जुड़ी हर खबर सीधे आप तक। देखिए अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। मोदी सरकार की सशक्त नीति, आगे बढ़ रही भारत की बेटी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में हरियाणा से की। इस योजना के तहत देश के सभी राज्यों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स चलाए गए। सामाजिक संगठनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को दिया संदेश। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न सरकारी विभागों में चलाया जागरूकता अभियान। इस योजना से बर्थ सेक्स रेशियो 2014-15 में 918 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बजट 2024 अंतरिम बजट है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। स्पष्ट तौर पर अब लोकसभा के पटल पर जब यह अंतरिम बजट रखा जा चुका है तो आप सभी के मन में यह होगा कि हमारे लिए, आपके लिए इस बजट में है क्या। सबसे बड़ी बात कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट 47,66,000 करोड़ रुपए का बजट, देश के विकास पर पूरे 1 साल खर्च करने का। इस तपस्या की शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर को, जब वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी, पूरी बजट टीम ने एक साथ मिलकर के देश के विकास को दिशा देने के लिए लोगों से बात करना शुरू किया। स्टेक होल्डर से बात करने के बाद जब बजट की प्रक्रिया शुरू हुई तो संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया हुई, एक तपस्या से गुजरने के बाद करीब 3 महीने और 45 दिनों के बाद अब देखिए ये जो बजट है अब आ चुका है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। बजट की जो बड़ी बातें हैं वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। क्या क्या कुछ इसमें कहा गया है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, उससे 4 करोड़ किसान जो हैं इनको लाभ पहुंचा है। ये बड़ा आंकड़ा, किस तरीके से जो किसान हैं प्राथमिकता में रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। लगातार सरकार के प्रयास रहे हैं। वहीं 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद मुहैया कराई गई है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। बजट 2024 अंतरिम बजट की बड़ी बात है। 3000 नई IITs की स्थापना की गई। लगातार देश को पिछले 10 सालों में कौन से बड़े कदम उठाए गए उसकी जानकारी आज वित्त मंत्री ने दी। PM स्वनिधि योजना एक जबरदस्त योजना जिसमें 18 लाख जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको फायदा पहुंचा। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना के कर्ज का लाभ मिला। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना, एक समावेशी विकास, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण पर ये बजट फोकस करता हुआ। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे महिला सशक्तिकरण केंद्र के नीतियों के अब केंद्र में है। साथ ही साथ आपने देखा कि G20 में भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ी घोषणाएं और लीड किया भारत ने। तो वॉक द टॉक करता है, केवल बातें नहीं करता है भारत। लोगों के वास्तविक औसत आय में 50% की वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ है उसका लेखा जोखा देश के सामने आज वित्त मंत्री ने रखा है।
और इसी कड़ी में देश में 16 IIT जो हैं वो खोले गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रिकॉर्ड समय में यहाँ पूरा होते देखा गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में वैश्विक समस्याओं पर जो सहमति है वो भी जताई। हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देगी, ये कहा वित्तमंत्री ने। साथ ही साथ अगर बात की जाए GST की, तो GST से वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट संभव हो पाया है। वहीं अगर अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास की बात कही गई है, यानी ये नए बनेंगे और 3 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य भी जल्द पूरा होगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू होगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से जो विकास है उसको गति यहाँ दी गई है। और ख़ास तौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन यहाँ दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में भी तेज़ी लाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। किस तरीके से अगर सामान के लिए बताया जाए, यात्रियों के लिए बताया जाए, अलग अलग ये 3 रेलवे कॉरिडोर। बुनियादी ढांचे पर फोकस एक बड़ा फोकस दिखाई देता है इस बजट का। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे बुनियादी ढांचे पर फोकस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, बहुत ही जाना माना नाम, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। आप महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल RIS के, और वेद जैन साहब जो कि जाने माने टैक्स विशेषज्ञ हैं। अनिल पद्मनाभन, आर्थिक मामलों के पत्रकार, इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं। एक समावेशी बजट हमें दिखाई देता है। स्पष्ट तौर पर हमने देखा कि जो फोकस है वो फिस्कल डिसिप्लिन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहा। कैसे रेट करते हैं आप इस बजट को? बिल्कुल सही है, और जैसा आपने कहा, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी कहा, प्रधानमंत्री को उन्होंने कोट किया और कहा कि पुअर, यूथ, फार्मर और विमेन, ये जो 4 नई जातियां हम समझ रहे हैं, इन चारों के संबंध में पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, और उसके साथ अगर अजय जी महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें तो 3 अनाउंसमेंट मुझे लगता है जो भविष्य के भारत के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक थे। और वो है, सबसे बड़ा जो प्रयास हुआ है वो R&D का जो फंड बनाने की बात सरकार ने करी है। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री एक फंड बनाया गया है। प्राइवेट सेक्टर में बार बार प्रयास हुए हैं पिछले कई वर्षों में, लेकिन ये महाप्रयास मुझे लगता है 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का जी। और ये महत्वपूर्ण प्रयास अगर हम देखें तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्नोलॉजी और R&D के बिना अब फ्यूचर में हमारे स्टार्टअप्स को और हमारी कंपनीज को वर्ल्ड में लीडरशिप देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण जो वित्त मंत्री ने कहा कि ये कर्तव्य काल है, तो कई क्षेत्रों में, चाहे वो SHG की महिलाएं हों जिनको अब हमारे टारगेट को 3 करोड़ करने की बात कही गई है, और ऐसी महिलाओं का एक विशाल समूह जो बॉटम पर काम कर रहा है, उन लोगों की संख्या। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखें, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की संख्या को आप देखें, ब्लू इकोनॉमी 2.0 की चर्चा, तो एक तमाम विशाल विकसित भारत की जो बार बार हम बात करते रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश की बात करते रहे हैं, कैपेक्स के लगातार एक्सपेंशन की बात करते रहे, आज वो कई सारे मुद्दों को वित्त मंत्री ने अपने करीब 1 घंटे के भाषण में सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास की जो बात सामने रखी, वो कई मायनों में डाटा के रूप में सामने निकल करके आई है। जी मुकुल जी बिल्कुल, और खासतौर से वेद जी अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमने अमृतकाल की शुरुआत की 5 प्रण के साथ, और उसके साथ अब कोशिश है कि हर जतन हम करेंगे कि देश को विकसित भारत हम बना सकें, और उसी राह पर अग्रसर हम हैं, और उसकी ही बानगी हम मान सकते हैं इस अंतरिम बजट में नजर आई। देखिए कि बजट में मैं जो समझता हूँ, वित्त मंत्री जी ने आज अंतरिम बजट होने के बावजूद जी, और जैसे इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट होने के बावजूद, मैं सबसे बड़ा अगर वित्त मंत्री जी की इस बजट में महत्वता देखता हूं तो उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा कर रखा, फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव बजट दिया है। जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आप ये 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फंड बनाया है, ये अपने आप में देश के लिए, युवा के लिए, आगे वाले काम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, 1 लाख करोड़ रुपए का अपने आप में रखने के बारे में। और आपने देखा कि जो वित्त मंत्री जी ने 4 जो आइडेंटिफाई की है उन्होंने, यूथ, वुमेन, फार्मर्स,
और गरीब, चारों को एड्रेस करने के लिए, अच्छा उनको एड्रेस करने में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो उन्होंने लॉजिस्टिक में हर एरिया के अंदर उन्होंने कहा, रेलवे के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, उन्होंने हर क्षेत्र में कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कैपिटल आउटले है वो 10 लाख करोड़ से बढ़ा के 11,11,000 करोड़ 111 किया है, 11% की इंक्रीज की है जी। ये सब कुछ करने के बाद फिस्कल डिसिप्लिन से नहीं हटे, क्योंकि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 5.8% प्रोजेक्ट किया गया है और नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट 24-25 का 5.1 है जी, विद ए कमिटमेंट की 24 अगले साल का 4.5% की रिस्क लाएगा। इसमें गिरावट लानी लगातार हम देखेंगे। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूंगा, डिसिप्लिन रखने के बारे में। और एक और आपने महत्वपूर्ण छोटी सी बात वित्त मंत्री जी ने जब कंक्लूड कर रही थी कि फिस्कल डेफिसिट में जो बोरोइंग हम 24-25 में करेंगे लगभग ग्रोस 14,13,000 करोड़ की और 11,75,000 करोड़ की नेट, वो वर्ष 23-24 से कम होंगी। तो मीनिंग देयर बाय हमारा इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है, खर्चा हमारा 44,90,000 करोड़ से बढ़ के 47,66,000 करोड़ होगा, लेकिन बोरोइंग कम होगी। इसका मतलब है सरकार का मैनेजमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन मैनेजमेंट बेहतर है। और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके लिए पैसा बचेगा। सरकार अगर उधार कम लेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए पैसा बचेगा और वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अनिल पद्मनाभन जी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नॉमिनल जीडीपी 10.5% मेरे ख्याल से रखा गया है, किस तरह से आप देखते हैं खासतौर पर? और ये जो बड़ा मैजिक नंबर है, ये जो मैजिक नंबर है 1111111 जो शगुन वाला, हाँ 11.1% का इंक्रीज है कैपेक्स में और 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बुनियादी ढांचे पर। आपकी रिएक्शन सर? मेरा यही है कि जो ग्रोथ पे जो फोकस था पिछले 3 बजट से लगातार, और कैपेक्स का जो आपने अभी आंकड़ा हमारे सामने रखा, तो हर साल ये डबल डिजिट ग्रोथ से बढ़ाया गया है। और आज देश में जो भी ग्रोथ आ रहा है ज्यादातर सरकार के कैपिटल स्पेंडिंग से ही है। और इन्होंने स्टेट्स को भी प्रोत्साहन दिया, इंसेंटिव दिया कि वो भी कैपेक्स बढ़ाए अपनी तरफ से। तो एक अगर सारे सरकार और भारत सरकार और स्टेट्स का भी ले जोड़ के, तो एक बहुत बड़ा रकम कैपिटल स्पेंडिंग में आ रहा है। और इसका आप जानते हो, इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है कि आप अगर 1 करोड़ स्पेंड करोगे तो उसके 3 करोड़ का फायदे होंगे आगे, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग है। और दूसरी बात जो इस ग्रोथ नंबर में जो एम्बेडेड है, जो मतलब वित्त मंत्री ने बताया बड़े विस्तार से, वो था कि इंक्लूसिव रहेगा ये ग्रोथ और सस्टेनेबल रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभी सचिन ने कहा कि भागीदारी में 4 वर्ग है, जो उन्होंने अभी, मैं दोहराना नहीं चाहता फिर से, तो ये चारों वर्गों पे फोकस रख के ही सारे एम्पावरमेंट के लिए स्ट्रेटजी है। तो ये कंटिन्यूटी है पिछले 10 साल में इनकी आइडियोलॉजी रही है एनडीए की, एंटाइटलमेंट नहीं एम्पावरमेंट। और ये बजट में दोनों फोकस बरकरार रहे हैं। और वित्त मंत्री ने वादा किया कि यदि सरकार, उनके हिसाब से सरकार वापस आ रही है, और जब वापस आएंगे तो अमृत काल में जैसा कि प्रोफेसर सचिन जी ने कहा कि बड़ा फोकस है टेक्नोलॉजी पर। जो युवा है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे अपने आप को जोड़े। 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड सरकार बनाने जा रही है। तो दूरदर्शन कहां पीछे रहता, हमने भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस वक्त ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं हमारे सहयोगी आर्यन प्रताप सिंह। पहली बार आपको बताने बजट में क्या कुछ है, बड़ी बातें। आर्यन जी बहुत शुक्रिया अजय। और निश्चित तौर से आप और मेहमान जिन बातों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री के बजट पिटारे से, अंतरिम बजट से क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई हैं, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ विकास और ग्रोथ सरकार की प्राथमिकता है। सीधे तौर से समावेशी विकास, जिसमें सबका साथ सबका विकास होगा, विकास और सरकार का ग्रोथ पर फोकस है। और ये अगर तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश की, जो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 9-10 वर्षों का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया। 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। कोशिश ये की गई है कि कैसे खनिज हो, सीमेंट हो या तमाम जो पत्तन, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर के माध्यम से हम जानते हैं फ्रेट कॉरिडोर का भी काम ऑलरेडी हमारे देश में चल ही रहा है। मेट्रो और नमो भारत का विस्तार करने की बात बड़े शहरों में की गई है, क्योंकि हम जानते हैं मेट्रो का विस्तार लगातार चल रहा है, नमो भारत के माध्यम से ट्रांजिट को बढ़ाया जा रहा है, यात्री ट्रेनों में परिचालन में सुधार होगा। और वंदे भारत के समान जो डिब्बे हैं उनको अन्य गाड़ियों में भी लागू करने की जिक्र किया है। यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार को बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। और वित्त मंत्री ने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया है आज के अपने अंतरिम बजट में।
बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीएनजी पीएनजी में बायोफ्यूल को मिलाने की बात, तो उसके लिए कैसे एक आधार तैयार किया जाए, उसका सारा खाका इस प्रकार की योजनाओं के तहत लागू किया जाएगा। गरीब किसान, युवा और महिलाएं, इन पर जोर रहेगा। 4 वर्गों की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, वो कहा था यही हमारे लिए एक आधार है, गरीब किसान, युवा और महिलाएं, और वो साफ तौर से तमाम पहल में दिखाई पड़ रहा है। गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि अगर इन वर्गों के लिए बेहतर तरीके से योजनाओं को जमीन पर लागू किया गया तो देश का समावेशी विकास निश्चित तौर से दिखाई पड़ेगा। वो बात वित्त मंत्री के भाषण में दिखाई पड़ी है। 10 सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया इस बात को मानती है कि किस प्रकार से जमीन पे काम हुआ है, उसकी वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 34 लाख करोड़ रुपए जनधन अकाउंट्स में पहुंचे हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डीबीटी के माध्यम से पहुंचने वाले, पारदर्शी तरीके से पहुंचने वाले आंकड़े के तहत कह सकते हैं 34 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी संख्या होती है। महिला उद्यमियों को 34 करोड़ मुद्रा योजना के ऋण दिए गए हैं, क्योंकि महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर वित्त मंत्री ने जो खाका खींचा है वो दिखाता है कि बीते 9-10 वर्षों में कैसे काम हुआ, और आगे भी वो ट्रैक, विजन और दिशा साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है, क्योंकि फसल बीमा के माध्यम से किस प्रकार से किसानों को संबल देने की कोशिश की जा रही है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। और देश को 2047 तक विकसित बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा था उसको दोहराते हुए वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट भाषण में दिखाई पड़ी हैं, और ये 6ठा बजट भाषण था उनका लगातार, और उसमें उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को आगे रखा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का संकल्प एक तरीके से दोहराया है, और इस बात का जिक्र उन्होंने एक तरीके से साफ तौर पे रखा है। तो मुख्य बातों के लिहाज से अगर बात की जाए तो करीब 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद मिली। हम जानते हैं 6,000 रुपए सालाना किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिलता है। तमाम प्रकार के सहायता मिलती रहती है, इन तमाम चीजों का फायदा कहीं ना कहीं मिला है। स्किल इंडिया मिशन से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, और युवाओं को प्रशिक्षित करके हम किस प्रकार से दुनिया में ह्यूमन पावर को लेकर कैसे कैपिटल बने उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। 3000 नई ITI की स्थापना की गई है। 9 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड वित्त मंत्री ने साफ तौर से सामने रखा है। शिक्षा के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने को लेकर किस प्रकार से काम हुआ है उसका जिक्र साफ तौर से दिखाई पड़ता है। देश में 16 नए IIT खोले गए हैं, IIM का जिक्र भी हुआ है। किस प्रकार से शिक्षा को नए स्तर पे, और ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया में भी IIT के संस्थान खुलते नजर आ रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 18 लाख वेंडर्स को मदद पहुंची है, और ये न सिर्फ स्वरोजगार बल्कि उनके माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का जिक्र भी यहां पे निकल के आया है। ये दिखाता है स्वनिधि के माध्यम से कैसे बात आगे बढ़ी है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिया गया है, और इन महिलाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जो कोशिश की गई है इसका एक मल्टीपल इफेक्ट भी देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। 10 साल में महिलाओं का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। ये उनके एनरोलमेंट से लेकर हो या उनमें किस प्रकार के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये साफ तौर से दिखाता है कि महिलाओं को केंद्रित योजनाएं कैसे जमीन पर तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा रहा है। हम जानते हैं पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से नई परियोजनाएं तो चल ही रही हैं, बल्कि बीती सरकारों की दशकों पुरानी योजनाओं को भी समय पे पूरा किया जा रहा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड भी 9-10 सालों का रखा उन्होंने। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में वैश्विक समस्याओं पर सहमति बनी। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये एक छोड़ी है, और वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व में सहमति बनी है। हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देती, जिसमें सबका साथ सबका विकास हो, और यही सर्व समावेशी विकास है जिसकी बात आज एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कही है। GST के माध्यम से 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट संभव हुआ है। कल ही हमने देखा जनवरी 2024 के आंकड़े आए हैं, 1,72,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने की बात की गई है। शहरी और ग्रामीण योजनाओं में पीएम आवास योजना के माध्यम से तमाम लक्ष्य रखे गए थे, और तेज गति से उनको पूरा किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में 2 लाख अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य, या कहा जाए महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उस पर आगे बढ़ रहा है। 3 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये बात भी वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कही है। तो ये प्रमुख बातें, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू होगी, क्योंकि अभी जो सबसे नीचे लोग वर्ग में थे उनके बाद अब मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवास योजना की एक शुरुआत की बड़ी घोषणा वित्त मंत्री ने आज अपने अंतरिम बजट भाषण में की है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन देने के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये बड़ी पहल है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो चाहे आशा वर्कर्स हो, ये अपने आप में लगातार
कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से भी जोड़ने की बात की जा रही है। वास्तविक औसत आय में 50% की वृद्धि हुई है, ये अपने आप में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। अगर हम वित्त मंत्री के बजट भाषण के मुख्य बातों के बाद अलावा अन्य मुद्दों पर भी हम बात करें, किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है, अलग अलग सेक्टर्स में इस बातों को उन्होंने रखा है, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अजय और मुकुल के पास चलते हैं। कि जो बजट भाषण है वो अब तक का मेरे ख्याल से सबसे छोटा बजट भाषण आप कह सकते हैं। 1 घंटे से कम, थोड़ा सा अधिक समय में पूरा किया गया। अंतरिम बजट अब आ चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये लगातार जो पेशकश है अंतरिम बजट 2024 पर जारी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं अंतरिम बजट 2024 में क्या कुछ खास रहा। हर एक क्षेत्र की अगर बात की जाए, किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि उसको और ज़्यादा गति हम दे सकें, विकास को और ज़्यादा गति मिल सके। और इसी में अगर वेद जी हम बात करते हैं एफडीआई की अगर बात की जाए, जिस तरीके से एक आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया कि 2014 से लेकर 2023 की अगर बात की जाए तो कम से कम करीब $596 अरब का जो एफडीआई है वो आया है। किस तरह का फ़ायदा इसके ज़रिए हम देख सकते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ नज़र आ रहा है और वैश्विक पटल पर एक तेजी से उभरती हमारी अर्थव्यवस्था। देखिए क्या है कि आप बजट के अंदर वित्त मंत्री जी के 3 अगर आप क्षेत्र देखें, वो 3 क्षेत्र एड्रेस करते हैं जी। एक देश की डोमेस्टिक, जिसमें उन्होंने 4 सेगमेंट बनाए, यूथ बनाया, वुमेन बनाए, फार्मर बनाए, पुअर बनाए। साथ के साथ वो देश को ग्रोथ, जिसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उसके बारे में बातें करते हैं, तो निवेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। और देश में हमारा इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर कितना कंड्यूसिव है, तो उसको उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में $596 बिलियन का निवेश आया है, जो अपने आप में एक्सेप्शनल है जी। ये दर्शाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी जी बिल्कुल काफ़ी मजबूत स्थिति जो है वो हम ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरीके से मजबूत स्थिति जो है नज़र आती है। और खासतौर से सचिन जी अगर देखा जाए, यही कई ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, गति दे रहे हैं। और विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, भारत आज विश्व मित्र है। इसीलिए देखिए कारण यही है कि जो आज की डेट में जो आप अपनी फिस्कल पॉलिसी चला रहे हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और इसका बैरोमीटर क्या है कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और 2 तरीके हैं, आप अपने कंट्री में कैसे उस सुविधाओं को बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। आपने देखा वित्त मंत्री जी ने रेलवे के बारे में कितने ज़्यादा सुधार किए हैं, रेलवे के बहुत ज़बरदस्त सुधार किए हैं उन्होंने उसके बारे में। इसके अलावा उन्होंने पोर्ट्स के बारे में भी कहा कि पोर्ट की कनेक्टिविटी, कॉरिडोर की अगर आप बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कॉरिडोर की बातें कही हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा रेलवे के कॉरिडोर के बारे में उन्होंने रोकना चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का रिएक्शन आ रहा है, पहला रिएक्शन इस वक्त सीधे संसद से, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बड़ा स्टेपिंग स्टोन है मेरे दृष्टि से उस बजट की। अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है,
उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो सचिन जी, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया था मंत्री जी भी उसी बात को दोहरा रहा हूं। पीएमश्री योजना में एक हम एलोकेशन देखते हैं सर, 2800 करोड़ रुपया आरई 2023-24 इसको बढ़ा करके 6050 करोड़ रुपया कर दिया, डबल कर दिया गया। ये इतना बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कि रोजगार के लिए, इस पर रिएक्शन से छोटा सा। देखिए आने वाला विकास लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। सीधे चलते हैं, आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां पर जो बजट पेपर्स हैं वो पेश किए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं राज्यसभा। टुडे Sri Nathwani, an industrialist, is currently in his 3rd term and has been in Rajya Sabha since June 2008. An ardent Lord Krishna devotee, he is known for his humility and disarming modesty. He is also the president of Gujarat State Football Association. Sri Parimal is married to Srimati Varsha Nathwani and has a son Dhanraj Nathwani. Sri Ajit Kumar Bhuyan has been a member of this August House since April 2020. He is a prolific Assamese author who has written books focusing on Assam's society and policies. His diverse career includes roles as a journalist, editor for prominent Assamese publications, and involvement in various social and human rights organizations. Sri V. Vijendra Prasad, an acknowledged scriptwriter and renowned director, has been a nominated. बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर
महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। Receipts and expenditure of the government for the year 2024-25. Fiscal policy statements 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table under subsection 1 of section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, a copy each in English and Hindi of the following papers. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Thank you. Honorable members, I have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members. Srimati Ramila Ben Becarbhai Bara, Srimati Seema Dwivedi, Dr. Ami Yaznik, Srimati Mosam Noor, Sri Kanak Medla Ravindra Kumar, Sri Prabhakar Reddy Vemi Reddy, Professor Manoj Kumar Jha, Lieutenant General Dr. D.P. Vats Sevanivrit. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 2nd February 2024. और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2024 अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। सचिन जी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से रीफ्रेम कर देता हूं, शायद आसानी होगी हमारे दर्शकों को। जो 2047 तक का विकसित भारत का सर बजट है, और अगर मैं दिखा पाऊँ ये जो विजन है इस पूरे बजट का, स्पष्ट तौर पर उन्होंने 3 शब्दों को केंद्र में रखा है। और ये सर केंद्र में शब्द आप भी देख लीजिए, प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर। ये जो विजन है सर, इन 3 शब्दों में एक तरह से समग्र रूप से बताता है कि हम 2047 तक जा कहाँ रहे हैं। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। माफी चाहूंगा जो बीच में व्यवधान है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप बजट के बाकी प्रोविजंस को भी देखें तो जय अनुसंधान कई स्वरूप में हमारे सामने बजट में निकल करके आया है। अगर आप वित्त मंत्री का कृषि के संबंधित दिया गया जो उनके बजट भाषण का हिस्सा है, उसमें अगर आप देखें तो वित्त मंत्री ने वहां पर 3 बातों की चर्चा करी है। पहला, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के क्षेत्र में जो शोध की आवश्यकता है, 5 अलग अलग ऑयल सीड्स की उन्होंने चर्चा करी। उसमें सोयाबीन शामिल है, मस्टर्ड शामिल है। इन सब के लिए जो शोध की आवश्यकता है वो जय अनुसंधान के अंतर्गत होगा। जिस ब्लू इकोनॉमी 2.0 की चर्चा करी वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की आवश्यकता है। जिस चर्चा से हम लोगों ने ये शुरुआत करी थी कि कॉर्पस फंड 1 लाख करोड़ का होगा, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए है। लेकिन अगर आप देखें, ये भावना बजट के सारे हिस्सों में हमें देखने को मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर का है, जहां पर 2 बड़े अनाउंसमेंट आज वित्त मंत्री ने करे। तो इन सारे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कृषि के तमाम हिस्सों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो मिडिल क्लास हाउसिंग है, चाहे लो कॉस्ट हाउसिंग है, या जैसा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा सोलर रूफटॉप सोलर पैनल्स की बात हुई है, सब जगह हम जय अनुसंधान की बात और उसकी भावना को अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो जैसा वित्त मंत्री ने अपने पार्ट बी में कहा कि हम उन तमाम क्षेत्रों में जहां 31 मार्च को टैक्स की अवधि की स्वतंत्रता समाप्त होने वाली थी, उसको हमने 1 साल के लिए बढ़ाया है। ये भी स्टार्टअप को जो उन लोगों के रिसर्च एंडेवर्स हैं, जो उन लोगों के एफर्ट हैं, उसको मार्केट में टर्न करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर देने वाला है। जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण अवसर जो हैं इसके जरिए मिल सकेंगे। और साथ ही आपको बताएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत की अगर बात की जाए तो बीते साल
के दौरान किस तरीके से जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो और बेहतर हुई है, मजबूत हुई है, उसकी बात उन्होंने बताया कि अगर हम शुरुआती तौर पर देखते हैं 2014 की अगर बात की जाए, जब जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, तमाम तरह की चुनौतियां सामने थीं, लेकिन बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और कहा कि इकनॉमी में बीते 10 वर्षों की अगर बात करें तो बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. एक बड़ी बात यह भी कि 2014 से पहले की जो नीतियां हैं और उसके बाद की नीतियों पर एक व्हाइट पेपर लेकर के आएगी सरकार, वो भी एक बड़ा बयान, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गरीबी को समाप्त करने के लिए कई काम किए, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. और वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास की सोच के साथ आज हर आखिरी व्यक्ति तक सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है और जो योजनाएं हैं उनके केंद्र में उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जिसको इस वक्त मदद की जरूरत है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ बड़ा फोकस है, घर, बिजली, जल, पानी के लिए क्या कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं, उस पर वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive and all inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi और सर्वसमावेशी। और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो हमारे देश के युवा हैं, देश की आकांक्षाएं हैं, उन्होंने कहा कि शानदार काम के आधार पर हमें फिर से जनादेश मिलेगा। Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and महीने का जो व्यय है, आय व्यय है, उसका विवरण देख करके सरकार अनुमति देती है। इस बजट में लेकिन हमारे लिए मुद्दा ये यूथ के एस्पिरेशंस पर एड्रेस किया है। महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी है और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात,
साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है, एम्फेसिस है, और टैक्स स्लैब नहीं बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा फोकस, आपको याद होगा पिछले बजट में 15,000 द्रोण दीदी बनाने का फैसला लिया गया था और इस बार लखपति दीदी पर फोकस। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 2 करोड़ लक्ष्य उनका है, लेकिन आज वित्त मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया और 3 करोड़ तक वो जा चुके हैं। और देखिए कि क्या कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, खासतौर से कृषि क्षेत्र की बात की जाए, दूसरे क्षेत्रों उनमें क्या कुछ खास है, इसके लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आर्यन का। शुक्रिया मुकुल और अजय। और निश्चित तौर से सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो किस प्रकार से तमाम काम किए गए, आप देख सकते हैं कि खेती किसानी को लेकर किसान सम्मान निधि की राशि में 11.8 करोड़ किसानों को एक तरीके से फायदा पहुंचा। ये उड़ता हुआ ड्रोन भी बता रहा है कि किस प्रकार से तकनीक का फायदा भी हुआ है और खेती किसानी को फायदा होने के काम किया गया। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। ये तमाम प्रयास बीते 9 वर्षों के लिहाज से किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया। ई नैम के माध्यम से कैसे तकनीक से किसानों को जोड़ा गया है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में लगातार किए जा रहे प्रयास हैं। 1.8 करोड़ किसानों को ई मंडी का लाभ मिला है और 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन ई नैम के माध्यम से, ई मंडी के माध्यम से हुआ है। तो ये दिखाता है कि किसानों को देश भर के बाजार का एक्सेस मिल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक की मोदी सरकार जो बात करती है वो फायदा हो रहा है। पीएम किसान संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार का सीधा फायदा किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सीधे तौर पे अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। 38 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा पीएम किसान संपदा योजना के लिहाज से अगर बात की जाए। और ये विस्तार दिखाता है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जो तमाम कोशिश कर रही है वो अपने आप में दिखाई पड़ेगा। 10 लाख रोजगार का सृजन होगा प्रधानमंत्री संपदा योजना के माध्यम से। किस प्रकार का जो ढांचागत विस्तार दिया जाएगा उसके माध्यम से 10 लाख रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते दिखाई पड़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से हमने बात की। अगर इसके अलावा हम बात करें अन्य सेक्टर्स में भी किस प्रकार से तमाम ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। से कहा क्योंकि ढांचागत विकास को विस्तार देने की कोशिश की गई, लेकिन महिलाओं के हिस्से किस प्रकार के तमाम प्रावधान वित्त मंत्री आज लेकर आई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा कार्यकर्ताएं हो, फिर आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो एक तरीके से विस्तार देती हुई योजनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। हम जानते हैं कि ये घर महिलाओं के नाम पर ही कहीं ना कहीं आते हैं, तो निश्चित तौर से ये महिलाओं को ही फायदा मिलेगा। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के बीच में जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है वो कराया जाएगा और निश्चित तौर से ये टीकाकरण अपने आप में देश की बच्चियों को स्वस्थ भारत के लिए आगे बढ़ाएगा। मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं का तालमेल बनाया जाएगा और एकीकृत तरीके से आगे बढ़ते हुए काम करते हुए प्रयास दिखाई पड़ेंगे, जहां से बच्चे से लेकर मां तक सबका स्वास्थ्य और पोषण बेहतर हो। इसका एक तालमेल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा जाएगा। आंगनबाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा क्योंकि सबसे पहला एक सेंटर होता है खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, जहां पे महिलाओं और बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीजें होती हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य पहले 2 करोड़ का था, अब इसको 3 करोड़ कर दिया गया। तो महिलाओं के लिहाज से हमने देखा किस प्रकार के तमाम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन रेलवे के लिहाज से क्या कुछ प्रावधान को लेकर आया गया है। इस बार वित्त मंत्री ने क्या कहा, बहुत बड़ी बात, क्योंकि 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। एक तरीके से अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और 3 आर्थिक रेल कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो इसमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट का कॉरिडोर होगा, क्योंकि जो विकास को गति देने के लिए सीमलेस तरीके से जो आधारभूत चीजें हैं वो पहुंच सके इंडस्ट्री के पास तक, उसके लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रेल कॉरिडोर का दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा और यह कनेक्टिविटी पोर्ट के माध्यम से हो ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और पहुंचने को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
तीसरा अगर बात की जाए तो उच्च यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर, जहां पे यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर एक तरीके से कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ऐसे में कोशिश यही है कि रेलवे के माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार का माल भाड़ा हो या फिर कोई यात्रियों का, उनमें सुगमता बनी रहे। पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है ताकि इसको गतिशीलता और ज्यादा तेजी से दी जा सके। इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया है। 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत के मानकों के आधार पर बदला जाएगा। हम जानते हैं कि न्यू इंडिया की पहचान वंदे भारत ट्रेन बन गई है, उसके स्तर तक ले जाने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर से बोगियां अब सामान्य ट्रेनों में भी उस स्तर की दिखाई पड़ेंगी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। एनर्जी को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री ने किस प्रकार के प्रावधानों का जिक्र किया या दिशा देने की बात किया, या उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना इस बात को। और आप ये देखिए, ये तथ्यों के आधार पर सौर प्रणाली से 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली देने की बात की गई है और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ावा देने का जिक्र लगातार कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने किया है। और कोशिश यही है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ये एक बड़े प्रणाली के तौर पर हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली की बात की गई है और यह सौर प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरह से हर एक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, सौर यूनिट के माध्यम से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की गई है। सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बसों का नेटवर्क बनेगा। देश में ई बसों का नेटवर्क तेज गति से बढ़ रहा है, इसको और विस्तार देने की बात है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और चार्जिंग स्टेशनों का इकोसिस्टम बनेगा, इस पर लगातार मोदी सरकार का फोकस है और इस बार के अंतरिम बजट में भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में लगातार हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स की बात की जा रही है। तो ये अगले सेक्टर के लिहाज से अगर बात करें तो किन तमाम चीजों को समाहित किया गया, डिफेंस की बात की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बनता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और रक्षा के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, सेल्फ रिलायंस बन रहा है और आयातक निर्यातक वाली जो स्थिति समय हुआ करती थी उससे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ बड़ी चीजें या प्रावधान आज वित्त मंत्री ने कहे, उसका जिक्र करें तो 3000 नए ITI बने हैं। इस बात को उन्होंने लिखा कि 9 से 10 वर्षों में देश ने किस प्रकार से एक ढांचागत विकास को जन्म दिया है। 7 नए IIT का निर्माण किया गया है और ये देश के कोने कोने में, एक जगह सीमित नहीं है, ये देश के अलग अलग कोने में है। इसी प्रकार से 7 नए IIM भी बनाए गए हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम राज्यों में IIM और IIT के विस्तार को नई शक्ल दी गई है। 15 नए एम्स का निर्माण किया गया। अब ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, तमाम राज्यों में विस्तार दिया है। स्वास्थ्य का ढांचा बढ़ाया गया और एम्स के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा पर भी जोर है। 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो यूनिवर्सिटीज का भी एक विस्तार देते हुए जो प्रयास किए गए हैं उसका जिक्र वित्त मंत्री ने किया। उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ा है। 28% बढ़ने का यह मायने है किस तरीके से महिलाओं के लिए स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। हम अगर अगले तथ्य की बात करें कि टैक्स को लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं या उसका जिक्र किया गया है, क्योंकि यह भी बहुत समझना जरूरी है। हालांकि कोई प्रावधान में बदलाव का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आयात कर कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि आयकर पर किसी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में बदलाव नहीं किए गए हैं। जो पूर्ववर्ती प्रस्ताव चले आ रहे हैं उसको एज इट इज रखा गया है, उसमें बदलाव की किसी प्रकार की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में नहीं की है। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है, यानी 1 साल इसको विस्तार दिया गया है। टैक्स पेपर सेवा में सुधार पर फोकस किया जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात की जाए तो इस अंतरिम बजट में क्या कुछ बड़ी बातें की गई हैं। आप देख सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उसके लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान का जिक्र किया गया है। एक शुभ नंबर को भी कहीं ना कहीं लेके आए हैं। लक्षद्वीप सहित बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। हम जानते हैं कि जो कोस्टल एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का लगातार फोकस है और उस फोकस के आधार पर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर कोस्टल पूरे एरिया में कैसे आगे बढ़ा जाए। उड़ान योजना के तहत 517 नए रूट लॉन्च करने की बात की गई है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं उड़ान के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 1000 नए विमान खरीद रहे हैं विमानन कंपनियां देश में। यह हमारी देश की बढ़ती विमानन क्षेत्र की क्षमताओं को साफ तौर से दिखाता है कि 1000 नए विमान हिंदुस्तान में बन के आ रहे हैं, तमाम कंपनियां खरीद रही हैं। ढांचागत विकास पे एक बड़ा जोर कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है और यह बढ़ते भारत की सामर्थ्य को साफ तौर से दिखाता है। कैसे अलग अलग सेक्टर्स में इसका जिक्र किया गया। वापस चलते हैं हमारे सहयोगी अजय और मुकुल के पास।
धन्यवाद आनंद जी। इन तमाम जो हाइलाइट्स हैं उनको हम तक जी बढ़ाते हुए और कुछ और रिएक्शंस लगातार जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं। सर्वानंद सोनोवाल जी जो कि शिपिंग से जुड़े हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। 2047 तक इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा, क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से चलने लगा है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि हमारी 140 करोड़ जनता के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के विकास के लिए ये बजट प्रस्तुति है। सर पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर के खास प्रावधान किए गए हैं, साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी 2.0 जिसका जिक्र सचिन साहब कर रहे थे, वो लगातार कर रहे थे विजन साहब। लेकिन एक बात सब लोग यही समझना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपसे समझेंगे कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया उसका क्या कुछ मतलब है और नया टैक्स रिजीम क्या कुछ कहता है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देख रहे हैं बजट 2024। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आप सभी का। अंतरिम बजट 2024 रखा जा चुका और सबसे बड़ी हाईलाइट जो आम जनता के मन में होता है, टैक्सेस को लेकर के क्या कुछ किया गया। कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यह बड़ी खबर है। विजन साहब, क्यों और क्या नई टैक्स रिजीम अब बिल्कुल डिफॉल्ट रिजीम बनने जा रही है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जब डायरेक्ट टैक्स की बातें की और पार्ट बी में कहा तो उन्होंने ये बताया, देखिए 2014 में 2,20,000 तक की एग्जम्पशन होती थी जो बढ़ा के 7 लाख की कर दी गई जी। है। जो माफ़ी के साथ आपको यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, एक और जो प्रतिक्रिया है वो लगातार हमारे पास आ रही हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं जो लगातार। Look, the last 10 years, Prime Minister Narendra Modi ji's policies, governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. When are you expecting the White List? जी वेद जी, आप बता रहे थे किस तरीके से। उसमें जो वित्त मंत्री जी ने जब डायरेक्ट टैक्स की बातें की तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि पिछले चेंजेस उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। 2,20,000 के एग्जम्पशन को बढ़ा के थ्रेशोल्ड को 7 लाख किया हुआ है। जो 2 करोड़ की प्रिजम्पटिव मॉडल था उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया। प्रोफेशनल के लिए जो 50 लाख था उसको 75 लाख रुपए कर दिया। और सिस्टम को कितना एफिशिएंट किया है, कितनी जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है, रिफंड कितनी जल्दी आ रहे हैं और सिस्टम किया है। और ये ध्यान में रखते हुए कि ये अंतरिम बजट है और रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैंने कोई चेंज नहीं किया है और नहीं करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ उसके 2 कारण हैं। एक तो रिफॉर्म जो डायरेक्ट टैक्सेस में होने चाहिए थे वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं, और ऐसा है कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री की लिमिटेशन होती हैं कि उसको बजट से कोई बड़े रिफॉर्म नहीं करने होते हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि डिफ़ॉल्ट रिजीम के बारे में, तो वो वित्त मंत्री जी ने लास्ट ईयर भी घोषणा की थी कि जो आज की डेट में न्यू रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट रिजीम होगा, यानी कि वो आपका माना जाएगा जब तक कि आप पुराने रिजीम में जाना नहीं चाहेंगे। तो पुराने रिजीम में जाने के लिए आपको चुनना पड़ेगा। और नए रिजीम का कारण भी बहुत सिंपल है, 7 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना कोई भी, और वेतन भोगी को 7.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सरकार की कोशिश है कि आप निवेश ना करके अगर खर्चा करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने परिवार की सुविधाओं को, अपने
परिवार में जो एंजॉयमेंट करना है, मनोरंजन है, जो खाने की चीज़ें हैं, वो उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी को भी तरक्की मिलती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, डिमांड जनरेट होती है। इसके पीछे उद्देश्य ये भी लगा हुआ था। जी बिल्कुल। और अंतरिम बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं। भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंच। और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है बजट 2024 पर, आइए सुनते हैं। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हम तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब सचिन जी हम विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इसमें राज्यों की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। और इसमें इस बजट में हमने देखा कि राज्यों के लिए भी किस तरीके से प्रयास किए गए कि वहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल जी। अगर आप देखते हैं 16th फाइनेंस कमीशन के बनने के बाद अगर हम इंटेंशन देखें जो 15th फाइनेंस कमीशन में कहा गया था कि राज्यों की भागीदारी होगी, प्रधानमंत्री ने 2015 में जब योजना आयोग से नीति आयोग बनाया तभी ये बात साफ निकल करके आई थी। और तब से अगर आप देखेंगे लगातार राज्यों की सहभागिता प्रशासन में, जो उनके कर के क्षेत्र हैं उसमें, जीएसटी के हमारे ट्रांजिशन में, और उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मुहैया कराए गए हैं। और उन राज्यों ने जिन्होंने उस पैसे का उपयोग उन तमाम योजनाओं के लिए किया है जो केंद्र से है, उनके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्कीम की जो उसकी जो कैपिंग है वो भी आगे बढ़ा दी गई है, तो 3.75 तक वो लोग जा सकते हैं। तो ऐसे राज्य जो प्रशासनिक क्षमता और अनुशासन दोनों को मान रहे हैं, उन राज्यों के लिए ये एक बहुत ही हेल्दी साइन आज बजट में से निकल करके आया है। टोटल आंकड़ा अगर देखें तो 22.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन राज्यों के लिए रखा गया है। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ लगातार विजयन साहब बने हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम में। विजयन साहब, अगर हम समझना चाहें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है तो हम बात करते हैं न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो बड़ा फोकस है उसका कितना मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हो सकता है अर्थव्यवस्था पर, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा फिजिकल, सोशल एंड डिजिटल, 3 उन्होंने वर्ड यूज किया डिजिटल की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में यह है जो जिसे हम कंक्रीट और जो फिजिकल रूप में, टेंजिबल रूप में देखते हैं। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो कि जिसके कि हम सोसाइटी में जो क्रिएट करते हैं उसके लिए जी। और एक डिजिटल है जो आज की डेट में जो डिजिटल स्ट्रक्चर हो गया है और जिससे कम्युनिकेशन के मेन और जिसका डिजिटल का स्ट्रक्चर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हमें फोकस करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत फोकस करना है। तो उन्होंने जब ये बातों की घोषणा की है तो उन तीनों बातों के लिए उन्होंने कहा कि फिजिकल के अंदर वो क्या कर रही हैं, सोशल में वो क्या कर रही हैं और डिजिटल में क्या कर रही हैं। आपने देखो फिजिकल में उन्होंने एक भी एरिया को नहीं छोड़ा, रेलवे से लेके पोर्ट से लेके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बात अभी चल भी रही थी जी, कि उन्होंने कहा 1 करोड़ परिवार के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात हो रही है। और उसमें क्या है, 300 यूनिट बिजली फ्री के अलावा आपको 15,000 से 18,000 रुपए सालाना की इनकम भी आ सकती है जी। जिसके लिए एक वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है उसके बारे में जो लगाने की बात हो रही है। ये अपने आप में बहुत किया है। जो मैं अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखता हूं, आम आदमी को एक बेनिफिट देना जरूरी है, साथ के साथ आम आदमी को स्वावलंबी भी बनाना जरूरी है। और जब देश को स्वावलंबी बनाना है तो आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा निवेश करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। रेलवे में उन्होंने कहा कि मैं 3 कॉरिडोर की बात करते हैं, जिसमें गुड्स की मूवमेंट की बात थी पहले, उन्होंने कहा मिनरल की मूवमेंट की बात है, सीमेंट की मूवमेंट की बात है,
फिर उन्होंने कहा कि साथ के साथ में आपको हाई डेंसिटी कॉरिडोर के बारे में भी बात करने की बात कही, क्योंकि हाई डेंसिटी कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाने की बात करने की बात की थी। फिर उन्होंने पोर्ट्स कनेक्टिविटी की एक बात की है कि सब पोर्ट को कनेक्टिविटी, जैसे वो कहते हैं हमारा था ना गारलैंड रोड माला के बारे में, तो उन्होंने पोर्ट कनेक्टिविटी की बात की है। इसी तरह से उन्होंने एयरपोर्ट के बारे में भी कहा कि आज की डेट में इतने एयरपोर्ट बने हुए हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट बनाने की आगे चलती रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात कही कि रेलवे में जो आज की डेट में लगभग 40,000 जो आज की डेट में वैगन्स हैं, इन सबको जो नई स्कीम आ रही है वंदे भारत उसी की तरह बनाया जाएगा और सुविधा दी जाएंगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बातें की। तो जो ये आपने बात की फिजिकल, सोशल और डिजिटल,